Good morning, everyone. We have to understand the concept of national income. To understand the concept, we have to understand some of the basic things about the right national income. Try to understand national income accounting is very important to understand the economic growth and the economic development of the country. National income accounting is done by every country in the world, and the data produced by them or data generated by them is used to compare the countries, right, which are the developing countries, which are developed and which are underdeveloped countries. Like in India, national income accounting is done by NIC और NSO बोल सकते हो आप, National Statistical Organization. They collect all the data, all the inputs required to calculate national income, and they, right, make you available the value of national income, that is GDP, gross domestic product. We have to also understand the different variants of national income. We have to also understand the various methods used to calculate national income. There are three methods that we have to understand: output method, income method, and expenditure method. And you should also understand that a particular method is not used. I mean, only particular method is not used to calculate national income, but it is a combination of the methods. For some sector or for some industries, they may be using output method. For some industries or sectors, they may be using expenditure method. And for some sectors in a same country, they will be using income method. The people who file their income tax returns, उनके लिए आप इनकम मेथड फॉलो कर सकते हो. एग्जांपल, जो लोग उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते तो उनके लिए यू मे गो फॉर द आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So it is a combination of these methods, not single isolated method which is followed. हम तीनों मेथड्स फॉलो करते हैं टू फाइंड आउट नेशनल इनकम. आइडियली कोई एक मेथड फॉलो होनी चाहिए. आइडियली कोई एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो होनी चाहिए फॉर द होल कंट्री, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. वो क्यों पॉसिबल नहीं, वो ही हमें समझना है. देयर आर थियोरेटिकल डिफिकल्टीज and at the same time practical difficulties for each method. So इंडिया में क्या किया जाता है, और इंडिया कोई भी कंट्री ले लो, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जाएगी, दे विल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड्स. तीनों मेथड्स यूज करके दे विल फाइंड आउट नेशनल इनकम. बिकॉज इनकम कैन बी मेजर्ड एट 3 लेवल्स. एक आउटपुट लेवल पे मेजर की जा सकती है, एक्सपेंडिचर मेथड पे यूज की जाती है. वही एक्सपेंडिचर किसी का इनकम होता है, इसलिए इनकम बेसिस पे और इनकम लेवल पे मेजर की जा सकती है. इसलिए नेशनल इनकम 3 मेथड से मेजर की जाती है: आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तीनों का आंसर सेम ही आना चाहिए. मैं आपको आइडियल सिचुएशन समझा रहा हूं. आइडियली होना क्या चाहिए, जैसे परफेक्ट कंपटीशन इज आइडियल मार्केट, वो जो होता नहीं, वैसे ही आइडियली किसी एक कंट्री के लिए, किसी एक इकोनॉमी के लिए, यू शुड फॉलो ए सिंगल मेथड. एक कोई भी एक मेथड फॉलो करो ऑफ नेशनल इनकम, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. तो अगर आप आइडियली कोई भी एक मेथड फॉलो करते हो या आप तीनों मेथड फॉलो करते हो, तो तीनों मेथड के आंसर सेम होने चाहिए. आइडियली बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वही हमें समझना है अंडर दिस चैप्टर, theoretical and practical difficulties. So ये समझना इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर हमें समझना है
different variations or the concepts of the national income. National income को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. Basically there are total 9 different concepts, but उसमें से in your syllabus they have taken only 4. In the previous syllabus there were 9 different concepts of national income. अभी हमें उसमें से 4 ही सीखने. Then we have to understand the features of the national income. Whenever you say GDP or when you say national income, what it signifies, what are the features of the national income. Then we have to understand 3 methods of national income with their limitations, or the precautions that we have to take while following a particular method for a particular sector. जैसे मैंने बोला, the professionals who file their income tax returns, हम उनके लिए income method follow करेंगे. But which precautions we should consider? Like हमें ये भी पता है इंडिया में बहुत लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करते हैं, मेनी टाइम्स दे हाइड और दे कंसील द इनकम. ये सब ऑलमोस्ट होता है. तो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो इनकम दिख रही है, इज इट एक्चुअल इनकम? इन मैक्सिमम केसेस द इनकम इज अंडरस्टेटेड. इन सम केसेस income is overstated. जिनको लोन वगैरह चाहिए ना, those people who are thinking to take loan or borrow money after 3-4 years, so अभी से तैयारी कर दे, they keep on paying higher taxes, they show higher income, they pay higher taxes, so उनकी loan eligibility, income eligibility increase हो जाती है, loan eligibility increase हो जाती है, and they can borrow. So ऐसे भी लोग manipulations करते हैं. In order to save taxes, not to pay taxes, they may understate the income. They may not reveal the income, they will conceal the income. This can be one situation. Second situation, people inflate the income and pay higher taxes. So दोनों are not genuine. So अगर हम income ITRs के through अगर income calculate करने जा रहे हैं, तो we should consider that some of the ITRs have been filed at a lesser income, some of the ITRs have been filed at a higher income, and some ITRs are genuine at the same time. So I have to consider that this is a difficulty. दिस इज लिमिटेशन ऑफ द मेथड कि हाँ हम ये मेथड फॉलो करेंगे, बट वो कितनी जेन्युइन है, उससे कितना जो डेटा मिलेगा वो कितना जेन्युइन डेटा रहेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट. मैं एक सिंपल एग्जांपल दिया जो आपको जल्दी क्लिक होगा. सो हमें ऐसे 3 मेथड समझने एंड तीनों मेथड्स के लिमिटेशन समझने. सो व्हेनेवर वी विल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मेथड, वी शुड कंसीडर दोस थिंग्स, वी शुड टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. समझ में आ रहा है? डूज एंड डोंट्स. लाइक कोई भी मेथड फॉलो करेंगे, so जब हम आईटीआर इनकम मेथड फॉलो करेंगे एंड हम उनके इनकम स्टेटमेंट्स कंसीडर करेंगे, हम उनके P&L, उनके बैलेंस शीट, हम उनके आईटीआर कंसीडर करेंगे, तो हमें ये समझना है, वी हैव टू टेक केयर कि कभी कभी इनकम सप्रेस की जा सकती है, कभी कभी वो इन्फ्लेट की जा सकती है. हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा टू एक्चुअली फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू. एंड जो हमें जीडीपी बोला जाता है, जो हमें नेशनल इनकम बोली जाती है, इट इज एस्टिमेट. बेसिकली होता क्या है, वो दैट इज नेवर द एग्जैक्ट पता भी नहीं चल सकता. मैं एग्जांपल बोलता हूं, अनादर, मतलब आपको थोड़ा क्लिक हो जाएगा. लाइक आउटपुट मेथड नाम क्या है? ठीक है, राइट. आउटपुट मेथड एग्जांपल, जो प्रोडक्शन होगा that will result in income. So output method is one of the method of calculation of national income. ध्यान देना, farmers they cultivate food grains and etc, right, vegetables etc. अब उसकी अकाउंटिंग कितनी होती है? हार्डली कोई फार्मर्स एग्जैक्ट अकाउंटिंग करता होगा कि उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसमें से वो मार्केट में कितना लेके गया और सेल्फ कंजम्पशन का कितना आया. So अगर आप फार्मर्स को जाके पूछते हो, टेल मी योर आउटपुट, दे कैन नॉट टेल यू एग्जैक्ट, दे विल टेल एस्टिमेट, अंदाजे इतना इतना हुआ होगा. सो यू डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी नेशनल इनकम फिगर आती है, राइट, दैट इज 9-10% इज नॉट एग्जैक्ट. वो आसपास रहती है, नॉट द एग्जैक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इवन गवर्नमेंट मेनी टाइम्स मैनिपुलेट द फिगर्स फॉर देयर ओन पर्सनल एजेंडा. ये इंडिया से
सिंस इंडिपेंडेंस है। ये आज हो रहा है ऐसे नहीं है, ये पहले से ऐसे होता है। बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी उतना इंपॉर्टेंट है जीडीपी से भी बेटर कंसेप्ट है, ये भी लोगों को नहीं पता है। और हर कोई पॉलिटिशियन आके जीडीपी के बारे में बात करता है। सो मेनी टाइम्स द वैल्यूज आर आल्सो लाइक मैनिपुलेटेड एट ए गवर्नमेंट लेवल। सो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। इज जीडीपी इज ओनली द नेशनल, इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम? नो, एक्चुअल जीडीपी तो जीडीपी से भी बेटर नेशनल इनकम मेजर करने के कंसेप्ट है, वो भी हमें समझने। सो ये ओवरऑल पिक्चर है आपके पूरे राइट नेशनल इनकम चैप्टर का, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय, मुझे कोई कंसेप्ट भी लेने, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं एकदम सिंपल से स्टार्ट करूंगा, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। लेट मी स्टार्ट विद दैट। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेशनल इनकम जो कॉमन डेफिनेशन है वो मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपके राइट योर पापाज इनकम, मैं आपको बोलता हूं आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, तो आप क्या देखते हो, राइट? You will find out the sources of income of your parents or your family. Like example, your mummy is employed, so salary can be her income. बराबर? Your papa is into business, so profits and gains from that business is income. Then आपकी मम्मी इन्वेस्ट करती है इन एफडीज, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, वहां से शी गेन समथिंग, लाइक उनको डिविडेंड मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता होगा, राइट? जब वो शेयर ट्रेड करते हैं, राइट, उनको वहां पे कैपिटल गेन होता होगा, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। आपके आपने आपके घर का जो छत है वहां पे टॉवर किसी एक कंपनी को, लाइक एग्जांपल आपने एयरटेल वालों को टॉवर लगाने को दिया है, वहां से आपको 80,000 1 लाख मंथली मिलता है, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम, रेंटल इनकम। एग्जाम्पल, आपने आपकी प्रॉपर्टी में से कोई पार्ट रेंट पे दिया है, रेंट कैन बी इनकम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बोल रहा हूं। सो अगर हम इन सब चीजों को साथ में रखें तो हम बोलेंगे दिस इज इनकम ऑफ योर फैमिली, बराबर? दिस इज इनकम ऑफ योर फैमिली। मैं एक मोटा मोटी चीजें समझा रहा हूं। वैसे ही व्हाट इज द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द कंट्री। जैसे किसी फैमिली की इनकम ज्यादा होती है, हम बोलते हैं इट इज अ रिच इनकम, रिच फैमिली। किसी फैमिली की इनकम अगर लाइक मीडियम रेंज में, हम उनको बोलते हैं इट इज अ मिडिल क्लास फैमिली। एंड जिनकी इनकम बहुत कम रहती है हम बोलते हैं इट इज अ पुअर फैमिली। सिमिलरली वो कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, राइट, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दोज कंट्रीज राइट हैव ए वेरी हायर लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और उनकी पर कैपिटा इनकम, इनकम पर इंडिविजुअल, टोटल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इट इज पर कैपिटा, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, जिनकी ज्यादा रहेगी नेशनल इनकम से बेटर पर कैपिटा इनकम, एवरेज इज अ बेटर इंडिकेटर, टोटल से एवरेज इज अ बेटर इंडिकेटर। सो वो कंट्री जहां पे पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज हायर, उनको हम डेवलप कंट्रीज या रिच कंट्रीज बोल सकते हो। रिच कंट्रीज बोलो। जहां पे वो मीडियम है हम उनको लाइक लाइक मीडियम क्लास कंट्रीज बोल सकते हो। ऐसे बोलते नहीं, रिच कंट्री या पुअर कंट्री, ऐसे दो ही कैटेगरीज होते हैं, राइट? एंड जिनकी बहुत कम है हम उनको पुअर कंट्रीज बोलते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे हम एक घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए इनकम मेजर कर रहे हैं, सिमिलरली किसी इकोनॉमी के लिए भी इनकम मेजर की जाती है। एंड दैट इज इन सिंपल ए कॉमन मैन्स लैंग्वेज इज ए नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी, आप एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में, बट दिस इज a common man can understand, but for an economy student this is not the correct definition. We should understand the correct definition. What do you mean by national income? एक जस्ट मैंने एक समझाया कि नेशनल इनकम को आप कैसे देख सकते हो। नेशनल इनकम को आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला इनकम ऑफ द कंट्री, बट एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? लिख लेना नेशनल इनकम, और फिर मैं एक एक उसके कंपोनेंट्स में जाऊंगा। And national income is one of the indicator for the understanding the development of the country, ठीक है? नेशनल इनकम।
वी आर नॉट सेइंग जीडीपी, वी आर सेइंग नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम के वेरियस कंसेप्ट है, उसमें से कंसेप्ट जीडीपी है. National income is the money value और मॉनिटरी वैल्यू. सो यहां से एक चीज समझ में आती है, नेशनल इनकम इज ए मॉनिटरी राइट वैल्यू. We measure national income in rupees. We don't measure in the quantities of like liters, like quantity in liters, quantity in kgs, quintals. कितना टन शुगर केन प्रोड्यूस हुआ ऐसे हम नहीं बोलते, वी कन्वर्ट दैट इनटू रुपीज. कितना लीटर्स ऑफ मिल्क राइट प्रोड्यूस हुआ, हम लीटर्स में नहीं बात करते, हम उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं. इतने रुपीस का मिल्क प्रोडक्शन था इंडिया में. कितने नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स प्रोड्यूस होके सेल हुए, नंबर में नहीं बात करते, वी कन्वर्ट इनटू रुपीज. बिकॉज अगर आप वैसे देखोगे तो एवरीथिंग इज मेजर्ड इन सम डिफरेंट मेजर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. किसी को हम लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, किसी को केजीज में मेजर कर रहे हैं, किसी को क्विंटल्स, टन्स. रोड्स आर मेजर्ड, रोड कंस्ट्रक्शन इज इन किलोमीटर्स. रेलवे लाइंस किलोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट्स में मेजर की जाती है, जनरेशन. तो हर एक का अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है राइट इन इकोनॉमी, हाउ कैन यू सम अप इन सब प्रोडक्शन अगर पुट टुगेदर इज अ नेशनल इनकम, तो हाउ कैन वी सम अप? देयरफॉर वी कन्वर्ट दिस आउटपुट इनटू मनी and then we add. So right, try to understand, national income is a monetary concept. So the money value of all final goods and services. Goods and services मैंने लिखा है all final goods and services. What do you mean by that? All final goods and services. Final means which are available for consumption. I'm not talking about intermediate goods. मैं final goods की बात कर रहा हूं. Example, if a farmer cultivates sugarcane and that sugarcane is made available to sugar factory, sugar factory will manufacture or will produce sugar. तो try to understand. तो फार्मर ने जो शुगर केन कल्टीवेट किया है, प्रोड्यूस किया है, वो उसने शुगर फैक्ट्री को दिया एंड शुगर फैक्ट्री ने उससे शुगर बनाया. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द शुगर will automatically include the value of the sugar cane, because the cost of production of the sugar includes cost of raw material which is sugar cane. So try to understand, वो जो sugar cane जो sugar factory ने purchase किया है to produce sugar, it should be ignored while calculating national income, because वो intermediate goods आ गया, वो raw material आ गया. Because the value of the sugar already includes the value of the sugar cane used to manufacture or like produce sugar. इसलिए यहाँ पे लिखा गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो पहले कंसेप्ट है इट इज अ मनी वैल्यू. सेकंड, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आई मीन वी शुड एक्सक्लूड राइट रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. वी शुड कंसिडर ओनली एंड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस. इट इज वेरी डिफिकल्ट. जितना मैं बोलने में इजी लग रहा है ना मुझे, उतना बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कैसे पता चलेगा which is final and which is intermediate. This is estimate, ये गेस वर्क रहता है. जो नेशनल अकाउंटिंग करने वाले जो एनएसओ है, they use their expertise, they use their judgment, they use their estimates, because exact figures नहीं होती, वही मैं बोल रहा हूं. So यहाँ पे आपको गेस वर्क
आपको एस्टिमेट्स, आपको आपका एक्सपीरियंस यूज करना होगा. सो एग्जैक्ट पता नहीं होता. जितना बोलने में इजी ना, उससे उतना ही डिफिकल्ट एक्चुअल में नेशनल इनकम कैलकुलेशन में. ठीक है. सो द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड produced in the territory of a country. So we are talking about territory of the country. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. We are talking about, ठीक है, what we are talking about, right? We are talking about the territory of the country. Actually this is right not the correct. ये जो डेफिनेशन है, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी है, या जो डेफिनेशन आप बहुत बार देखते हो, दिस डेफिनेशन इज लाइक बिफोर ग्लोबलाइजेशन. बहुत पहले की डेफिनेशन है जहां पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होते थे, जहां पे इंडियन कंपनीज फॉरेन में जाके गुड्स प्रोड्यूस करके सेल नहीं करते थे. वहां की कंपनीज इंडिया में आके गुड्स प्रोड्यूस करके सेल नहीं होते थे. लाइक वो ईरा जहां पे लाइक इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं होते थे. सो हमारे लिए लोग लाइक जो भी नेशनल मार्केट है वही फाइनल मार्केट है. बट आज वैसे नहीं है. द पिक्चर हैज चेंज्ड. राइट, यहाँ पे बैठ के हम फॉरेन में गुड्स सेल कर सकते हैं, फॉरेन से गुड्स परचेज भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ द कंट्री लिखा है, नाउ दिस इज अ लिमिटेड डेफिनेशन टुडे. राइट, देयर इज नो बाउंड्रीज टू द मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट भी प्रेजेंट है. बट अभी समझ लेना. सो द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. राइट, व्हाट इंक्लूड्स टेरिटरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक मोटा मोटी में बोल दूंगा व्हाट इज इंक्लूड इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. राइट, इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ड्यूरिंग ए ईयर और ड्यूरिंग ए ईयर और अकाउंटिंग ईयर, आप जो लिखना है लिखो. ड्यूरिंग ए ईयर, दिस इज द डेफिनेशन. ड्यूरिंग ए ईयर, ड्यूरिंग ए ईयर. अब मुझे एक एक चीज समझाने दो. आपके टेक्स्ट बुक में क्या डेफिनेशन है, लेट मी चेक. नेशनल इनकम, हमें उसको समझना है, ब्रेक करना है बेसिकली. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह ये सब चीजें हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, gross domestic product, one of the concept of the national income. It is a right market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. ठीक है, मुझे ऊपर एक डेफिनेशन होगी, लेट मी चेक. उन्हें देना चाहिए कहां पे. तो ओके, यहाँ पे वो डेफिनेशन है, यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे दी है, ध्यान देना. एग्जाम, अब मैं थोड़ा उसमें डीप में जाता हूं. तो ये डेफिनेशन आपको फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देगी. फीचर्स, मुझे एक एक चीज समझानी, सो डोंट वरी. दिस चैप्टर में टेक like a bit time. Features first, it is a money value. So in India the national income is measured in rupees. In USA it is measured in dollars. दूसरी बात, मनी वैल्यू क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने वाले हैं. राइट, सो एग्जांपल, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इतना आउटपुट किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने इतना आउटपुट किया, एजुकेशन सेक्टर का आउटपुट इतना है. राइट, आईटी इंडस्ट्री का आउटपुट इतना है, बैंकिंग का आउटपुट इतना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टील सेक्टर का इतना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इतना है, अलग अलग. टूरिज्म,
राइट। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स है, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे यू कैन डिवाइड द इकोनॉमी, द एंटायर इकोनॉमी इनटू स्मॉल स्मॉल सेक्टर्स। आप ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लाइक एग्जांपल हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। फिर हम हर सेक्टर को सब सेक्टर्स में और हर सब सेक्टर को सब सब सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम ऐसे सेक्टर्स को अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं एंड हर सेक्टर का आउटपुट लिखते हैं, लाइक नेशनल इनकम इज द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम की एक और डेफिनेशन हो सकती है, इट इज ए टोटल आउटपुट, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री इन ए ईयर। सो ऐसे हर सेक्टर ने जो जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, अगर हम उसको कंबाइन लेते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। बट द प्रॉब्लम इज हर सेक्टर का आउटपुट अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट रेट बेस लेके मेजर किया जाता है। जैसे मैंने पहले अभी बोला था, राइट, फार्मर्स जनरली टन्स में उनका आउटपुट मेजर कर सकते हैं। अगर कार्स की बात करते हो, इट इज इन द नंबर्स, राइट। अगर आप एग्जाम्पल सर्विसेज सेक्टर का लेते तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि, तो इन दैट केस हम रुपीज टर्म्स में बोलते हैं कि बैंकिंग ने इतने रुपीज का टर्नओवर हुआ, या इतने रुपीज के लोन्स दिए, इतने रुपीज का, राइट, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, एग्जाम्पल, राइट। अगर आप एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री देखते हो, राइट, नंबर ऑफ टन्स ऑफ द कोल एक्सट्रैक्टेड, एग्जाम्पल। अगर आप पावर जनरेशन इंडस्ट्री का देखते हो तो, राइट, मेगावाट्स, राइट, कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो हर सेक्टर का आउटपुट अलग अलग यूनिट्स में आ रहा है, तो देन इट बिकम्स दे आर नॉट एट द सेम प्लेटफॉर्म। तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, हम उनको सम अप कैसे करेंगे? बिकॉज हर सेक्टर का आउटपुट ऐड करो, आपको टोटल इकोनॉमिक आउटपुट पता चलेगा, विच इज नेशनल इनकम। बट हम उसको ऐड अप नहीं कर सकते, उसको सम अप नहीं कर सकते, इसलिए उस आउटपुट को हम एक कॉमन मेजरमेंट में लेके आते हैं, दैट इज रुपीज टर्म्स में। सो जो कोल एक्सट्रैक्ट किया है, दैट मेनी टन्स ऑफ द कोल एक्सट्रैक्टेड, हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। जो फार्मर्स ने, लाइक, वेजिटेबल्स कल्टीवेट किए, फूड ग्रेन्स कल्टीवेट किए, उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कार्स, व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए, उसको हम रुपीज में मेजर करेंगे। हर सर्विस सेक्टर का रुपीज में, हर सेक्टर का आउटपुट, राइट, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे एंड वी विल ऐड, and then we will get a figure that is called as national income. So national income is a money value. It is a money value. It is always and always expressed in the monetary terms. So whenever you say GDP is always, it is in rupees terms. It is not in the quantity term. It is in the rupees term. आप percentage में बात करते हो, that percentage is a percentage of rupees. Try to understand. आप, right, ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट फीचर इज ए मनी, मॉनिटरी। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, मैं मेरे सीक्वेंस में चलूंगा, राइट, और फिर आई विल फिल अप द डॉट्स। ध्यान देना, सबसे पहले द फीचर्स ऑफ, जो हमने डेफिनेशन में देखे वो देखेंगे। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ध्यान देना, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, इट इज अ मनी वैल्यू। डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा हूं मैं पहले। मनी वैल्यू, national income is always expressed in the monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money, or which can be right, which are exchanged for money. Indirectly, right, it does not talk about the captive consumption. जो आउटपुट फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, इट डज नॉट टॉक अबाउट दैट। एग्जाम्पल, कोई शुगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एंड उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी दे आर यूजिंग फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन, और उनके क्वार्टर से एम्प्लॉइज के लिए वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एंड फॉर दैट दे डू नॉट चार्ज। सो फिर उसका क्या होगा? वो भी प्रोडक्शन हो रहा है बट उसके लिए हम कोई चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे वो हमें समझना है, जिसके लिए, राइट, वो आउटपुट जो हम मनी के लिए एक्सचेंज करते हैं, वही आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे, वही, बिकॉज हमें उसका डेटा अवेलेबल होगा। कैप्टिव कंजम्पशन का डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। देयर आर लिमिटेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है।
बिकॉज मेथड्स लगते इजी है बट दे कम विद लिमिटेशंस. इट इज नॉट इजी कि आप एक एक्चुअल मार्केट में कितना आया वो तो समझ सकते हैं. You can easily find out the total output brought in the market and sold because कहां पे ना कहां पे उसकी अकाउंटिंग होगी. बट द आउटपुट विच इज यूज फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन उसका क्या, राइट? नो वन कैन एग्जैक्टली टेल यू. मैंने आपको सिंपल एग्जांपल शुगर फैक्ट्री का, ये होता है इंडिया में कितने सारे शुगर फैक्ट्रीज है जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड राइट वो खुद के प्रोडक्शन में यूज करते हैं. तो उसकी क्या भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कहां पे आएगा, फिर उसका एग्जैक्ट नंबर कहां से पता चलेगा. चलो इलेक्ट्रिसिटी का आप ढूंढ तो सकते हो, फार्मर्स के केस में कैसे करोगे? एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज द फार्मर्स. तो ये डिफिकल्टी है. सो समझ लेना, इट इज द मनी वैल्यू. हम क्या लेते हैं? सबसे पहले लेंगे मनी वैल्यू. दूसरा जो डेफिनेशन से मुझे फीचर मिला, सेकंड फीचर इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. We consider only final goods and services, right? That is, ignore intermediate goods, या उससे बेटर आप बोल सकते हो रॉ मटेरियल्स. सिंपल वर्ड्स, इग्नोर रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स. इनपुट जल्दी समझ में आता है. इनपुट्स फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग. अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, ये हम आउटपुट मेथड में डबल काउंटिंग भी समझेंगे. मतलब क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बोला था, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते टाइम. फार्मर ने शुगर केन बनाया, उसने एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का शुगर केन उसका आउटपुट है. हमने उसने जो भी टन्स ऑफ शुगर कल्टीवेट किया उसको वैल्यू 10 लाख है. ही गेव इट टू राइट शुगर फैक्ट्री एंड शुगर फैक्ट्री को उसने दिया एंड शुगर फैक्ट्री ने ओवरऑल राइट 1000 lakhs की शुगर मैन्युफैक्चर की. एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बिकॉज देयर आर मेनी शुगर लाइक फार्मर जो उनको शुगर केन देंगे, बराबर. एंड यूजिंग दैट शुगर केन उन्होंने 1000 lakhs की शुगर मैन्युफैक्चर की. तो शुगर फैक्ट्री का आउटपुट शुगर है, फार्मर्स का आउटपुट शुगर केन है. दिस शुगर केन इज अ इनपुट, इट इज इंटरमीडिएट गुड, राइट? इट इज रॉ मटेरियल फॉर शुगर. अगर आप बोलते हो कि फार्मर का आउटपुट 10 lakhs प्लस शुगर इंडस्ट्री का आउटपुट 1000 lakhs, एंड अगर आप बोलते हो 1010 lakhs इज द टोटल आउटपुट, इट इज रॉन्ग. बिकॉज जब शुगर की फाइनल प्राइस आएगी, जब शुगर की कॉस्टिंग होगी, जब उसकी मार्केट प्राइस डिसाइड की जाएगी, उसमें इस शुगर केन की भी कॉस्ट इंक्लूड होगी. बिकॉज कॉस्ट जब इसकी बनेगी, फाइनल आउटपुट की कॉस्ट क्या होती है? इनपुट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. लाइक ये जब 1000 lakhs की शुगर बनी है, उसमें क्या रहेगा? इनपुट, सब इनपुट, उसमें शुगर केन रहेगा, उसमें लेबर का काम का वेजेस रहेगा, उसमें उन्होंने जो लोन्स बोरो किए उसका इंटरेस्ट रहेगा, शुगर फैक्ट्री अगर कोई मशीनरी का डेप्रिसिएशन रहेगा, रेंट रहेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लस प्रॉफिट भी रहेगा बिकॉज ओनर इज टेकिंग रिस्क. तो ये सब ऐड होके राइट शुगर का फाइनल आउटपुट की वैल्यू डिसाइड होगी. और ऑब्वियसली इट मींस ये जो 1000 lakhs की शुगर है, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स 10 lakhs. अगर आप ये अलग आउटपुट लेते हो और ये अलग आउटपुट लेते हो, देन दिस 10 lakhs विल गेट डबल काउंटेड. आपके बुक में जनरली कॉटन का एग्जांपल होता है. लाइक वो क्या बोलते हैं, कॉटन मैन्युफैक्चर हुआ, फिर कॉटन यूज बाय द टेक्सटाइल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स. So the value of the cloth already includes the value of the like cotton purchased. तो obviously अगर आप कॉटन की अलग नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कॉटन की वैल्यू लेते हो एंड हम क्लोथ की भी वैल्यू लेते हैं, तो कॉटन की वैल्यू जो इनपुट है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी काउंटिंग डबल हो जाती है बिकॉज उसकी वैल्यू लाइक क्लोथ में भी कंसिडर की गई है. क्लोथ की वैल्यू इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ द कॉटन प्लस लेबर प्लस
रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑल दोज अदर एक्सपेंसेस, वो है आपकी क्लोथ की वैल्यू। क्लोथ बनाने के लिए जो जो लगा उसकी वैल्यू। टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टू अवॉइड डबल काउंटिंग you should consider only final goods and services. This is a challenge to actually find out which is final and which is intermediate. ये भी चैलेंज है। लाइक जब आप कॉटन की बात करते हो, ध्यान देना, कॉटन यूज बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज ए इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स। बट वही कॉटन जब हॉस्पिटल में यूज होता है तो इट इज लाइक ए फाइनल गुड्स। बट आपको कैसे पता चलेगा, एग्जैक्ट कैसे बोलोगे कि कितना हॉस्पिटल में यूज हो रहा है और कितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है? एट द सेम टाइम सम ऑफ द कॉटन जो फार्मर्स कल्टीवेट करे वो उनके घर में भी यूज करते हैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। शुगर केन देखो, शुगर केन आप महाराष्ट्र और हम वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो शुगर केन इज वेरी कॉमन फॉर अस। जब शुगर केन कल्टीवेट होता है, सम ऑफ द शुगर केन इज सोल्ड टू शुगर फैक्ट्रीज, राइट? एंड दूसरी बात, शुगर केन पूरा का पूरा सेल नहीं होता है, कोई शुगर केन रखा जाता है सो दैट नेक्स्ट ईयर में उसको फिर से कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाए, इनपुट बोल के। एंड गुराबी एक कंसेप्ट महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है, जहां पे हम क्या करते हैं, राइट, शुगर केन सेल करते, तो वही मैं बोल रहा हूं, लोग राइट शुगर केन जूस सेल करते हैं, उनको भी सेल करते हैं। तो आप कैसे ढूंढोगे एग्जैक्ट किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? लोगों शुगर केन को छील के वो बेचते हैं, देखा होगा आपने, पैकिंग करके बेचते हैं, ऐसे भी बिजनेस करते हैं। तो वहां पे तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। एग्जाम्पल देखो ना, आप नासिक जाओ, नासिक जाते टाइम आपको लाइक राइट वहां पे वाइनरी ज्यादा है। क्यों वाइनरी ज्यादा है? बिकॉज वहां पे ग्रेप्स, राइट, आपको वो बेल्ट ही उसका है। आप रास्ते से जा रहे होगे, आपको रास्ते रास्ते पे ठेले दिखेंगे, वो वाइनरीज को भी उनका आउटपुट सेल करते हैं, एट द सेम टाइम वहां पे रोड पे भी खड़ा रह के भी वो सेल करते हैं, क्योंकि लोग पास हो रहे तो वहां से परचेस भी करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेप्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनके जस्ट लाइक आप वहां पे रास्ते से भी परचेस कर सकते हो, मार्केट में जाके परचेस कर सकते हो, या वो वाइनरीज को सेल करते हैं जिस जहां से वाइन बनती है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, जितना सिंपल लिखने के लिए ना उतना सिंपल नहीं है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू अंडरस्टैंड विच इज फाइनल एंड विच इज इंटरमीडिएट। हाउएवर हमें क्या कंसीडर करना होता है? फाइनल राइट, फाइनल गुड्स एंड सर्विस हमें क्या कंसीडर करने? फाइनल। इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल क्यों नहीं कंसीडर करने? बिकॉज द वैल्यू ऑफ intermediate goods gets reflected in the value of the final output. Therefore, हम we ignore the values of intermediate goods to avoid double counting. So second feature जो मुझे यहाँ से डेफिनेशन से मिला, पहले मिला मनी वैल्यू, दूसरा मुझे बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द टेरिटरी। ठीक है, सो यहां पे लिखा होगा, देखो फाइनल किधर है? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस कंसिडर इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन द नेशनल इनकम। The value of only final goods and services produced in the economy are considered. The value of intermediate goods, चलो उन्होंने intermediate goods यूज किया है, intermediate goods और raw material, okay देखो raw materials is not considered. For example, right, while estimating the production of the shirts, there is no need to take the value of the cotton as it is already included in the price of the shirts. It is already included in the price of the shirts. Then थर्ड फीचर जो मुझे यहां से मिल रहा है, पहले मनी वैल्यू मिला, दूसरा मिला मुझे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, ड्यूरिंग ए ईयर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग is for a given year, right, for a year. I am talking about all that goods and services produced in a year. So production of the previous year is considered in the calculation national income of the previous year, not the current year. ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस साल में प्रोड्यूस हुआ वो इंपॉर्टेंट है, किस साल में सेल हुआ वो नहीं। क्या बोलो, ध्यान देना, ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज रिलेवेंट एंड नॉट द ईयर ऑफ सेल। रीसेल के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, ए फ्लैट वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्लैट वाज कंस्ट्रक्टेड in 2018, constructed and sold in 2018, and after 2 years it was again sold back, resale हुआ in 2020. This is resale, वही फ्लैट। 2018 में उसकी वैल्यू रुपीस एग्जाम्पल 60 लाख है, एंड 20 में भी ऑलमोस्ट 60 लाख है, या आप 62 लाख लेके चलो। रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट है, ठीक है, रीसेल को उतना वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान देना, 62 लाख। सो इन 2018 जब ये फ्लैट कंस्ट्रक्ट के सेल हुआ, इन दैट ईयर आपने ये 60 लाख कंसिडर किया है उस ईयर के नेशनल इनकम में, एंड इस ईयर में वही फ्लैट दोबारा सेल हुआ है, रीसेल है एट 62 लाख। शुड वी कंसीडर? नो, वी शुड नॉट कंसीडर दिस इन द इनकम ऑफ 2020। हमने 60 लाख पे उसको कंसिडर किया था इन द 2018। रीसेल इज नॉट, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस इन द सेम ईयर। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज पे जब शेयर्स परचेस सेल होते हैं, वो जो वैल्यू क्रिएट होती है वहां पे, दैट वैल्यू इज इग्नोर्ड। रीसेल मार्केट इज नॉट कंसिडर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रीसेल मार्केट में जो वैल्यू क्रिएट होती है, जो वैल्यू जनरेशन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, सर्विसेज रीसेल नहीं बोल सकते लेकिन गुड्स की तो बात कर सकते हैं हम, वी डू नॉट कंसिडर। आप बोलोगे सर देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 2 लाख, वो इनकम में आ जाएगा, 2 लाख की इनकम दिखेगी, वो इनकम में रिफ्लेक्ट होगा, बट मैं बोल रहा हूं वी विल इग्नोर दिस ट्रांजैक्शन। ये रीसेल ट्रांजैक्शन है, हम it was already included in the income of 2018, it should not again include in the right 2020। एक इनकम किसी एक ईयर की हो सकती है, ना कि 2 ईयर की, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसको 2018 में नहीं कंसीडर करते तो 2020 में करना चाहिए, बट वो रॉन्ग रहेगा। अगर वो कंस्ट्रक्ट होके सेल हुआ है 2018 में, तो ऑब्वियसली इट इज इनकम ऑफ 2018। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीसेल्स आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस रीसेल। उसी ईयर में रीसेल हो गया, 2018 में ही परचेस हुआ, 2018 में ही सेल हो गया, बट जब वो रीसेल होगा ना, राइट, उसको हम इग्नोर करेंगे। वी डू नॉट कंसिडर रीसेल बिकॉज इट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम वो उस ईयर में प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो पहले कभी प्रोड्यूस हुआ है। सो देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान देना, ठीक है, ओके। क्या है net aggregate value, income, financial year? Yes, financial year. National income is always expressed with reference to a time period that starts from 1st April and ends on 31st March. So ये तीन तो चीजें हमें कहां पे मिली, डेफिनेशन में मिली। कौन कौन सी? The value of only final goods and services, ignore intermediate goods, right? Financial year, it is calculated for a year from April to March, and money value। अब ध्यान देना बाकी फीचर्स, it is not a micro but it is a macroeconomic concept। We are not calculating income of the individual household, we are not calculating the income of, right, a business, we are not calculating income of the Reliance, but we are calculating the income of all the industries put together। We are not calculating income of my or your income, we are calculating the income of all the population put together। हम macro aggregate concept study करें, aggregate। So national income is the aggregate concept, individual income is a micro concept। Try to understand। So national income represents income of the economy as a whole rather than that of an individual, hence a macroeconomic concept। So national income is a macroeconomic concept, value of only final goods and services considered। Third, net aggregate value। Okay, what is the net? Net aggregate value means we should deduct depreciation,
बिकॉज जब नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. एग्जाम्पल, इन द करंट ईयर हमने, एग्जाम्पल मैं सिंपल बोलता हूं, 1 लाख करोड़ के व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो गए. इन द करंट ईयर 1 लाख करोड़ रुपीस के व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए. बट टू मैन्युफैक्चर these vehicles, existing assets are being used. So कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हो तो existing assets, capital assets are being used. They are getting depreciated, right? Wear and tear हो रहा है उनका. And for that purpose, suppose example, ऐसे मान के चलो कि 1 लाख, एग्जाम्पल 1000 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ऐसे कुछ, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यूज, मैं आपको समझाने के लिए. सो योर ग्रॉस आउटपुट वैल्यू इज 1 लाख करोड़. बट जब वो 1 लाख करोड़ का आउटपुट बना रहे हो, वो बनाने के लिए एग्जिस्टिंग असेट्स आर बीइंग यूज्ड, दे आर गेटिंग डेप्रिसिएटेड, worn out. सो आई विल से नेट 1 लाख करोड़ का आउटपुट बना है, उसके लिए 1000 करोड़ का डिक्रीज हुआ है. तो नेट इंक्रीज कितना है, नेट आउटपुट कितना हुआ है, रुपीज, एग्जाम्पल 99,000 करोड़. सो आई विल से योर नेट इनकम और नेट इंक्रीज इज 99,000. सो हम क्या लेते हैं, नेट एग्रीगेट वैल्यू, नॉट ग्रॉस. सो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ध्यान देना क्या हुआ. देखो, नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. दैट इज नेट इज इक्वल टू, लिख लेना, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, आगे हमें इसलिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें एक फॉल्ट है. हम ग्रॉस, जो हमें पॉलिटिशियंस बोलते हैं जीडीपी जीडीपी जीडीपी, वो ग्रॉस बोल रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन विदाउट माइनस करके बोल रहे हैं. सो एक्चुअली वी शुड नॉट बिलीव इन जीडीपी, वी शुड नॉट ट्रस्ट दैट मच इन जीडीपी एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट. बट यहां पे लिखा है वी शुड कंसिडर नेट वैल्यू, बट हम लेते हैं ग्रॉस वैल्यू. सो जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस होगा, हमें एनडीपी मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वी शुड मोर बिलीव इन एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट हमें कोई एनडीपी बोलता ही नहीं, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं ऐसे भी कुछ कंसेप्ट हो सकती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कंसेप्ट हो सकती है. सो जो लोगों को पता है वही बोला जाता है, विच इज जीडीपी. एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, आगे नेक्स्ट. सो जब जीडीपी निकालते हो ना, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता. सो अलग अलग वेरिएंट्स है, ग्रॉस इनकम कितनी है, नेट इनकम कितनी है. ठीक है, जैसे हम प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऐसे हम निकाल सकते हैं अलग अलग इसमें. वैसे ही राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है. डोमेस्टिक की बात करें, नेशनल की बात नेशनल इनकम की बात ही नहीं हो रही है. जब जीडीपी की बात हो रही है, आप डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हो. नेशनल इनकम में इंटरनेशनल से जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जो इनकम होती है वो कंसिडर नहीं होती. जीडीपी मतलब इंडिया में जो जनरेट हो रही, वही जो बाहर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वजह से जो इनकम है वो कंसिडर नहीं होती. जीडीपी जो हमें बोला जाता है ना, जो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सुनते आ रहे हैं, ईच गवर्नमेंट हमें हमारा डैश डैश बना रही है. GDP is not the correct. Try to understand. Most important is NNP, Net National Product. सबसे बेस्ट है NNP, Net National Product. आगे नेक्स्ट, आगे ठीक है, वो समझना है हमें एक्चुअली किसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है. मैं जस्ट समझा रहा हूं आप लोगों को. सो एक मैंने बोला क्या होना चाहिए, हम फीचर्स देख रहे हैं राइट. किसने लिखा सर, व्हाट अबाउट फॉरेन रिजर्व्स. Reserves is not income, reserves is asset. What about foreign exchange reserves? Reserves is not income, reserves is asset. And we're not talking about like reserves, we're not talking about
बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड एवरीथिंग, बीओपी की बात नहीं कर रहे हम नेशनल इनकम की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वजह से, राइट, इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन रिजर्व्स डिक्रीज होंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। जो फॉरेन रिजर्व्स है ना वो कैश इन हैंड टाइप है, वो असेट है। इनकम मतलब पी एंड एल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम इनकम की बात करें, सो नेशनल इनकम है फॉरेन रिजर्व्स। देखो फॉरेन रिजर्व्स, अगर आप फॉरेन रिजर्व्स की बात करो तो इट इज असेट, बट जब ये ट्रांजैक्शन हो रहे, दे आर सेटल इन द फॉरेन रिजर्व्स, राइट। समटाइम्स इंपोर्ट के टाइम वी हैव टू पे द फॉरेन वी हैव टू मेक द पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। जब हम एक्सपोर्ट करें तो हम फॉरेन से करेंसी अर्न करेंगे, तो वो जो परचेस सेल हो रहा है उससे, उसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे। एंड जो हमारे पास इन हैंड फॉरेन करेंसी है ना, वो हमारी असेट है, वो हमारी असेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे आगे नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड, ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल, राइट, एग्जांपल ध्यान देना। वी आर इन टू इंडिया, ठीक है। आपके घर में, लाइक एग्जांपल, आई कैन टेक एन एग्जांपल विच इज एक्चुअली एमएनसी, नॉट रिलायंस। रिलायंस से भी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में विच आर डूइंग बेटर देन इवन रिलायंस इन एट ए लाइक इंटरनेशनल लेवल, लाइक इन्फोसिस, राइट, लाइक टाटा। दे हैव फॉरेन स्टैंडिंग, उनको फॉरेन क्रेडिबिलिटी भी बहुत है। रिलायंस इज द बिगेस्ट इन इंडिया, बट फॉरेन में उतना प्रेजेंस नहीं है, दैट इज ऑल्सो द फैक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज हम लेते हैं इन्फी, इन्फी तो सबको पता है, कोई इश्यू नहीं, राइट। सो अब क्या, अब एग्जांपल ध्यान देना। इन्फी हैज ए ऑफिस इन सम अदर कंट्री, किसी एक कंट्री में उनका खुद का एक ऑफिस है, ठीक है, आईटी कंपनी। वहां पे वो सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, वहां पे वो सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यहां पे कैन आई से, राइट, राइट, यहां पे भी वो सर्विसेज कर रहे हैं। इट इज इंडियन कंपनी विच इज ऑपरेटिंग अब्रॉड, तो हमने उसको कंसिडर करना ही नहीं करना, बिकॉज द इनकम एक्रूज टू इंडिया, इनकम एक्रूज टू इंडिया, द इनकम इज ट्रांसफर टू इंडिया, इट इज इंडियन कंपनी। एट द सेम टाइम IBM is a MNC, they are operating in India and their income accrues to foreign country, तो उसको हमने कंसिडर करना ही नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है, ये हमें समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई हमारे लोग बाहर जाके काम करते, इंडियन सबसे ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं, राइट। अगर कहाँ पे भी देखो किसी डेवलप कंट्री में, दे देयर इनकम एक्रूज टू इंडिया, वो काम यूएस में कर रहे हैं बट देयर इनकम एक्रूज टू इंडिया, तो उसका क्या रहेगा। एट द सेम टाइम वो लोग भी हमारे इधर आके काम करते हैं, देयर इनकम एक्रूज टू यूएसए द कंट्री, उसका क्या करेंगे। सिंपल चीज है, समझा रहा हूं, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अनदर एग्जांपल, ध्यान देना। डेविड वार्नर कम्स एंड प्लेस फॉर हैदराबाद, ही अर्न्स प्राइज मनी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। तो वो इनकम जो इंडिया में, जो सर्विसेज उसने दी है, जो इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है, वो एक्चुअली इंडिया की है या ऑस्ट्रेलिया की है। एट द सेम टाइम कोहली गोज एंड प्लेस मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही wins some prize money. The income is generated in Australia, but is it the income of the Australia or income of India? There is a Infosys who is exporting services. At the same time, there is, like example, bullet train from Mumbai to Ahmedabad, who are like importing technology from the Japan. Infosys is providing services to US companies sitting in India. हम सर्विसेज, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, वी आर वन ऑफ द लीडर, राइट, इन द एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज। यहाँ पे बैठ के हम सर्विसेज देते हैं फॉरेन में। एट द सेम टाइम हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, राइट, दे इंपोर्ट टेक्नोलॉजीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी, यहाँ पे इंपोर्ट भी है। हमारे लोग बाहर घूमने जाते हैं, हनीमून वगैरह आपने सुना होगा, या आपकी फैमिली ट्रिप गई,
हम वहां पे जाके जो स्पेंड करते हैं, इट इज दियर इनकम, वो वहां पे इनकम जनरेट हो रही है। वैसे वो लोग इंडिया में आते घूमने के लिए, एंड दे स्पेंड हियर, इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है, वो इनकम किसकी है? ये सब चीजें क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे लोग वहां पे जाके काम करते, दे रेमिट द मनी, वी रिसीव द मनी, बराबर। एंड उनके लोग इंडिया में आके काम करते हैं, दे रेमिट द मनी देयर, रेमिटेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंस, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो जब डोमेस्टिक की बात कर रहे हो, राइट, विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जीडीपी डज नॉट टॉक अबाउट दैट, जीडीपी इसकी बात ही नहीं करता। तो ये भी हमें समझना है, राइट। अब ये जो मैं समझा रहा हूं ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे उसमें से कंसेप्ट समझानी है, जो आज मेरा मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको किसको भी नहीं पता होगा। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल, डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू बाय डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटरी ऑफ द कंट्री? लाइक दिस इज इंडिया, whatever is within India, territory, all the goods and services produced in this boundary is within the territory of India. At the same time, even some water is also included in the territory of the India. Water, high seas वगैरह, ONGC वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, एग्जाम्पल हाई सीज वगैरह, that is also territory of India. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। So the services, goods and services produced on this land, right, is territory of the India, बराबर, is a territory of the India, बराबर ना। एट द सेम टाइम यहाँ पे फिशिंग की जाती है, यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर किया जाता है, एग्जाम्पल, राइट, नेचुरल गैसेस एक्सप्लोर किए जाते हैं, दिस इज ऑल्सो टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सो यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा, फिशिंग वगैरह एग्जाम्पल, सबसे सिंपल, दैट इज ऑल्सो, राइट, प्रोडक्शन इन इंडिया, ये दिस इज प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। अब ध्यान देना, इंडियन शिप्स, यहां पे कोई इंडियन शिप है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के डिफरेंशियल समझ रहा हूं, ओवरऑल मोटा मोटिया, दिस इज इंडियन शिप, इंडियन शिप अपना, इट इज नॉट इन इंडियन वाटर, दिस इज समवेयर एल्स। यहां पे भी सर्विसेज दी जाती है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको खाना वगैरह, कॉन्सर्ट्स वगैरह किए जाते हैं, वहां पे भी, राइट, इनकम जनरेट होती है। बट अब ये प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट इन द वाटर ऑफ इंडिया, एंड दिस इज अ शिप, दिस इज यूएस शिप विच इज इन द वाटर ऑफ इंडिया, यहां पे भी सर्विसेज दी जा रही है, यहां पे भी सर्विसेज दे रही है, तो इसका क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। सो व्हाट इज टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं, ध्यान देना। व्हाट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया? दिस लैंड इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस वाटर इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन शिप्स, वो कहां पे भी होने दो, वो इंडिया के वाटर में होने दो, बाहर होने दो, विल बी कंसिडर्ड इंडिया। व्हाट इज इंडिया फॉर द नेशनल कैलकुलेशन? नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए हम इंडिया की टेरिटरी क्या क्या मानेंगे? एक, दिस लैंड, सेकंड, द वाटर, थर्ड, इंडियन शिप्स, मे बी दे मे बी इन इंडिया और दे मे बी आउटसाइड इंडिया। प्लेन्स, सिमिलरली शिप्स एंड प्लेन्स, राइट, इंडिया से यूएस शिप प्लेन जा रहा है, वहां पे भी सर एयर इंडिया का है, इंडियन प्लेन एयर इंडिया का है, यहां से वहां जा रहा है, वहां पे भी सर्विसेज दी जाती है, वहां पे भी इनकम जनरेट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो वो शिप भले यूएस में हो, बट दैट विल बी कंसिडर्ड इंडिया, दैट शिप विल बी कंसिडर्ड इंडियन टेरिटरी। उस शिप में जो भी सर्विसेज क्रिएट हो रही है, वो सर्विसेज की वैल्यू इज कंसिडर्ड क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। So what is the territory of India for the purpose of calculation of the national income? एक, obviously this. Second, I water, Indian ships, Indian planes. ठीक है, फिर वो कहां पे भी हो, शिप्स,
शिप्स कहां पे भी हो, दैट विल बी कंसिडर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इनकम कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, आगे इंडियन एम्बेसीज। अच्छा, इंडियन एम्बेसी इंडिया में होगी या बाहर होगी? इंडियन एम्बेसी कहां पे होती है? देन बोलो। आई विल टेक ऑल द डाउट्स लेटर ना, मैं जो सिखा रहा हूं अभी उस पर ध्यान दो। हाँ बोलो, इन इंडियन एम्बेसी कहां पे रहेगी? व्हाट यू फील, इन इंडिया और इन सम अदर कंट्रीज? इंडियन एम्बेसीज, ओके, इन अदर कंट्रीज, ओके, एंड फ्रेंडली फॉरेन नेशंस, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया में है, इंडियन एम्बेसी वहां पे है, तो रिलेशन थोड़ी फ्रेंडली है, नॉट नेसेसरी ना। मतलब फॉरेन कंट्रीज में आप ऐसे बोल के चलो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। तो इवन दैट एम्बेसी, एग्जांपल यूएस में एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी इज इन यूएस। अब उस एम्बेसी में जो सर्विसेज जनरेट हो रही है ना, दैट सर्विसेज इज आल्सो कंसिडर एज जनरेटेड इन इंडिया, इंडिया's टेरिटरी, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। So Indian embassies which are situated abroad is also part of India for national income accounting. So मैंने ये चार चीजें बोली, एक this, water, ships, planes and Indian embassies, वहां पे जो जो सर्विस जनरेट होगी उनको माना जाएगा विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सिमिलरली अब ध्यान देना, इंडियन यूएस देखना, इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, न्यूयॉर्क में है सपोज,